بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح کے اسلامک اور سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں انہیں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی تھی۔ محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچی تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی پھیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ میں پریشان ہو کر اسے تلاش رہی تھی لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے۔ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے میں وہ سوئی بالکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر زندگی گزارتے رہے اور حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی اور انہیں بولنا سکھاتی، ان کی آنکھوں میں کاجل لگاتی، ان کے سر میں تیل لگاتی اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھاتی۔ ان دنوں قبیلہ بنو سعد میں بہت زیادہ غریبی تھی، یہاں تک کہ زمینوں پر گھاس تک نہیں اگتی تھی۔ اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرنے جاتے تھے تو شام کو بھوکے لوٹتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تھی تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتی۔ محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں جا کر وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ محلے والوں کے چرواہے یہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں ان کا پیٹ بھر لیتی اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور دوسرے لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ ہر روز اپنے گھر میں برکتیں ہی برکتیں دیکھتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکے کی طرح دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر 2 سال کا وعدہ کر کے لائی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے ان کی ماں آمینہ کی طرف چلی۔ حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس پیارے سے بچے کو ابھی اتنی جلدی واپس کروں، اسی لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، وعدہ کے مطابق 2 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں۔
क्योंकि मैं देखती हूँ कि मक्का में बहुत ज्यादा बीमारियां फैली हुई हैं और मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई बीमारी ना लग जाए। इसलिए आप मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए मेरा बच्चा मेरे पास ही रहने दे। हलीमा सादिया ने बहुत ज्यादा जिद की तो हजरत आमिना ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम इतना ज्यादा कह रही हो तो कुछ दिन और अपने साथ मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हलीमा सादिया बहुत खुश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आ गई। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंगन में खेल रहे थे। उस जमाने में मिट्टी के घर होते थे। हलीमा सादिया अपना कुछ काम कर रही थी और उनके शोहर सामने एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी वहां से कुछ यहूदी लोग गुजरे। उन्होंने जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी से चलकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपकी आंखें बहुत गौर से देखने लगे। हलीमा सादिया घबरा गई कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। फिर उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह से हैं। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। फिर उन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मुहरे नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये हमारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया उनकी ये बातें सुन गई और बहुत घबरा गई। तभी उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है। हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो सामने चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि अगर तू कहती है कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इसे अभी कत्ल कर देते हैं। ये कहकर वो यहूदी वहां से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन इसी वाक़े के कुछ ही दिनों बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ए बीबी, इस लड़के की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। तो उन ईसाइयों ने कहा कि ए बीबी, ये लड़का हमें दे दो, हम इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे क्योंकि ये आने वाली नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहां से चले गए। एक दिन हजरत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक मेले में गई। ये मेला उकाज नामी एक बस्ती में लगा करता था। इस मेले में अरब के बड़े बड़े लोग आते थे और पूरा महीना हर तरफ चहल पहल रहती थी। हजरत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उसी मेले में पहुंची कि तभी एक जादूगर औरत की नजर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई और उसने चीखते हुए लोगों से कहा कि ए लोगों, इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये आने वाले जमाने में तुम्हारे बुतों को गिरा देगा और तुम्हारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया ने जैसे ही ये बातें सुनी तो भीड़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर छुप गई। लोगों ने हमारे हुजूर को बहुत तलाश किया, लेकिन अल्लाह की मदद की वो लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पा सके। हजरत हलीमा तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लिए अपने घर की तरफ जा रही थी कि उनका गुजर एक जिलहिज्जाह बस्ती से हुआ। यहाँ भी एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में हर साल एक बहुत बड़ा जादूगर आकर बैठता था और लोगों को देखकर उनकी किस्मत बताता था। जब हजरत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस जादूगर के पास से गुजरी तो उस जादूगर की नजर जैसे ही हमारे हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और कहने लगा कि ए लोगों, इस लड़के को मार डालो, ये तुम्हारे दीन को मानने वालों को खत्म कर देगा और तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और अरब से तुम्हारे बाप दादा की निशानियों को खत्म कर देगा। ये कहते हुए वो जादूगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा ताकि आपको पकड़कर जान से मार दे, लेकिन उसी वक्त उस पर अल्लाह का अज़ाब आ गया और वो पागल हो गया और फिर उसी पागलपन में उसकी मौत हो गई। ये सारी चीजें देखकर हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने घर आकर अपने शोहर को सब कुछ बताया। तो कहने लगे कि ए हलीमा, मुझे तो इस बच्चे के बारे में अब डर लगने लगा है, तुम जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को उसके घर मक्का वापस कर आओ। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया से पूछा कि ए अम्मी जान, ये दिन भर मुझे अपना भाई अब्दुल्ला और अपनी बहन शीमा नजर नहीं आती, वो दोनों दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो हलीमा सादिया ने बताया कि बेटा, वो दोनों दिन में बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियां चराने जाऊंगा। और फिर अगले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने जाने लगे। 3 दिनों बाद दोपहर के वक्त अचानक हजरत शीमा और उनके भाई अब्दुल्ला दौड़ते हुए घर आए और हलीमा सादिया से कहने लगे, अम्मी जान, हमारे मक्की भाई को 2 लोगों ने पकड़ लिया है और उनका सीना फाड़ दिया है और वो उनके सीने से कुछ निकाल रहे हैं। ये सुनकर हजरत हलीमा बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने शौहर के साथ जंगल की तरफ भागी। जंगल में पहुंचकर देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। हुजूर के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हलीमा सादिया ने पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगे कि ए मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया, तुम परेशान क्यों हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि ए अम्मा जान, मैं अकेला यहाँ खड़ा हुआ था कि अचानक 2 आदमी आए। उन्होंने सफेद चादर पहनी हुई थी। उसमें से एक ने दूसरे से पूछा कि क्या यही वो लड़का है? तो दूसरे ने कहा कि हाँ, यही वो लड़का है कि जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर उन दोनों ने मुझे जमीन पर लिटा दिया और मेरा सीना फाड़कर अंदर से कोई चीज निकाली और उसे फेंक दिया। फिर मेरे सीने को किसी चीज से सील दिया। अम्मा जान, मुझे इतनी देर जरा भी दर्द न हुआ। ये शक के सद्र का वाक़या है कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल में मीकाईल को भेजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से वो चीज निकलवा दी थी कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है और शैतान उस पर हावी होता है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही पाकीज़ा बना दिया गया था। ये सुनकर हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची। शौहर ने कहा कि हे हलीमा, अब तुम ऐसा करो कि बल्कि आज ही इस बच्चे को लेकर मक्का जाओ और इसे इसकी माँ के हवाले कर दो। मुझे डर है कि अब इस बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। हजरत हलीमा सादिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ चलती है। कुछ दिनों के सफर के बाद वो मक्का पहुंची, लेकिन अभी वो मक्का में दाखिल हो ही रही थी कि अचानक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से कहीं गायब हो गए। वो बहुत परेशान हो गई। शाम का वक्त हो रहा था और हजरत हलीमा इधर उधर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। आखिर परेशान होकर हजरत हलीमा सादिया अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और उनसे कहने लगी कि ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपके पोते मोहम्मद को वापस करने मक्का आ रही थी कि
बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता ही ना चला। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी परेशान हो गए और उन्होंने अपने लड़कों को दौड़ाया कि जाओ जल्दी से मक्का में हर तरफ ढूंढो कि मेरा पोता किधर है, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई भेड़िया अपना शिकार बना ले। सारे लोग परेशान होकर हमारे हुजूर को ढूंढने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में गए और उसका गिलाफ पकड़कर रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे पोते मोहम्मद की हिफाजत फरमाना, वो जहाँ भी हो उसे सही सलामत मेरे पास भेज देना। इतनी देर में बरका बिन नौफल और एक दूसरे आदमी अब्दुल मुत्तलिब के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और आगे बढ़ाते हुए कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये आपका बेटा है, हमें मक्का के बाहर एक जंगल में मिला था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और फिर उन्हें लेकर काबे का तवाफ करने लगे और अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। और फिर अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को हजरत आमीना के पास भेज दिया। हजरत आमीना ने हलीमा सादिया को अपने पास बुलाकर पूछा कि ए हलीमा, तुम इतनी जल्दी मेरे बच्चे को वापस क्यों ले आई? अभी तो कुछ दिनों पहले तुम इतना जिद करके मेरे बच्चे को लेकर घर गई थी। हलीमा सादिया ने फरमाया कि ए आमीना, हमारा आपका वादा 2 साल का हुआ था कि मैं 2 साल इस बच्चे को अपने यहाँ दूध पिलाऊंगी। अब 2 साल गुजर चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप भी अपने बच्चे को पाले। हजरत आमीना समझ गई कि बात कुछ और है, इसीलिए कहने लगी कि ए हलीमा, सही सही बताओ कि असल मसला क्या है। जब हजरत आमीना ने बहुत ज्यादा कहा तो हलीमा सादिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे जादूगरों ने कत्ल करने को कहा था और यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की थी और फिर आपके सीने को 2 लोगों ने कैसे फाड़ा था। हलीमा सादिया ये सारी बातें बताती जा रही थी और रो रो कर कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे इस बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो हजरत अमीना ने कहा कि ए हलीमा, क्या तुम मेरे बच्चे पर शैतान से डरती हो कि कहीं शैतान मेरे इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे? तो हजरत हलीमा ने कहा कि हाँ आमीना, मुझे इसी बात का डर लगता है। तो हजरत आमीना ने फरमाया कि ए हलीमा, ऐसा हरगिज़ ना होगा। जब मेरे इस बच्चे की पैदाइश हो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे अंदर से एक नूर निकला है कि जिसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। और फिर हजरत आमीना ने दाई हलीमा को पैदाइश के वक्त के सारे मोजज़े बतलाए और फरमाया कि ए हलीमा, अब तुम जा सकती हो। मैं खुद चाहती थी कि मेरा प्यारा बच्चा अब मेरे पास आ जाए। दाई हलीमा वापस चली गई और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी हजरत आमीना के पास जिंदगी गुजारने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारी वीडियो फ्री में ही देखने को मिल जाएगी।